constant or a character constant or string constant or any other constant. Symbolic constants names are also known as constant identifier. और ये सेकंड वाला नहीं होगा जो हमने const keywords के साथ किया था, ये सिर्फ एक ही टाइप का चलेगा hash define के थ्रू. So symbolic constants are different. अगर आप उसको const keyword के साथ अप्लाई कर रहे हो तो if you are not using const keyword and hash defined preprocessor you are using, it could be defined as symbolic constant. तो उसकी मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, ऑलरेडी वो कर चुके हैं. See, this is the syntax for hash defined. Hash defined symbolic constant name, value of the constant, then like hash defined pi's value has been defined and golden ratio and max value has been assigned. तो ये सारी हैं hash defined आपके symbolic constants. Symbolic constants names are written in uppercase by convention, but it is not required. If you will use its name as, or you can say if you are giving name to the constant in lowercase, it will work. Okay, compound statements. जिन्होंने भी दूसरी programming languages पढ़ी हैं, can you define what is compound statement? Anyone? No. Okay, compound meaning in real life, if I ask you, meaning of compound? Two or more than two. We can say collection, merging, more than two, or two or more than two, yes. So ऐसे बोल सकते हैं. तो statements we know, whatever we write, like C equals to A plus B and then semicolon, it is a statement, it is an expression. If is a statement, switch case kind of statement, ठीक है. while loop लगा रहे हो, for loop लगा रहे हो, तो एक लाइन में लिख रहे हो, collectively use कर रहे हो. These are statements. It could be two or more than two at one place, or we can say in the body of the first in the body. If you are applying for, then it is also a compound statement. Nested if नहीं बनेगा, वो बन जाएगा compound statement. Similar होता तो वो nested if बन जाता, दोनों different है तो that will be a compound statement. ठीक है. So a compound statement, also called a block, typically appears as the body of another statement, such as the if statement. Declaration and types describes the form and meaning of the declaration that can appear at the head of a compound statement. So इसका example, इसका syntax है like compound statement, then curly bracket of the compound statement, the first statement, local area of that first statement, it could be declaration list and there could be statement list, or we can say declaration list कि आपने कुछ declare करना है, so you are declaring that, then you are giving body to that declaration, so that is its list. और अलग से आप कुछ loop चला रहे हो, for loop ले रहे हो, कोई और if statement दे रहे हो, तो वो statement list हो गई. ठीक है, मतलब collection of two or more statements, declaration, looping at one place are known as compound statement. Clear? चले आगे? Yes, ma'am. Then we have unary operator. When I was discussing about bitwise operator, I gave you one thing. वो लिखवाई नहीं थी, मैं सेक्शन ए के नोट्स पे भेज दूंगी, उसमें मैंने वो लिखवा दी थी. There are two types of operator. First is binary one and second is unary. Binary which requires two operand like A and B. So A left operand, B right operand, and in between bitwise operator we had. So bitwise operator were working on two operands, two different operands. But when we came towards not A, it was working on a single operator, not जो था bitwise operator, not. ठीक है. So whenever any operation is required and that requires only one operator, तो वो operators क्या होते हैं? Unary operator.
ठीक है. So unary operators we have. These are the operators that act upon a single operand to produce a new value. Unary, minus, increment, plus plus. Yes, Shreya. मैम मेरे को ना समझ नहीं आया बाइनरी और यूनरी का डिफरेंस. Okay, wait. See, bitwise operator क्या था? A and B. Yes. A is left operand and B is right hand side of the and. So if I want to apply this and, ठीक है, then I need two operands A, B. Minimum दो operand मुझे चाहिए. तो जब ये दो ऑपरेंड चाहिए तो ये हो गए बाइनरी ऑपरेटर जिनको वर्क कराने के लिए आई नीड मिनिमम टू ऑपरेंड्स. अब अगर मैं नॉट की बात करूं कि A is there and I want not A, तो A जो था अगर A की वैल्यू 0101 है तो नॉट A will be 1010. यही था जब हमने A and B किया था लास्ट में. यस मैम. नॉट निकाला था. तो नॉट में क्या चाहिए? आई am having no need of B here. It is working with A only. Single A operand it is asking for its operation. So when we need two operands और जो एक ऑपरेटर है और उसका आउटपुट आपको दो ऑपरेंड्स को यूज करके आएगा, then those operators are known as binary operators. But when you need only one operator for its result, then it is unary operator. So this not is unary operator. This tilde sign is a unary operator. Bitwise not. Bitwise and is binary operator because it requires two operands. Now clear? मैम बट यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर जो है एंड का, तो वो तो हमने बाइनरी में भी यूज किया है. बाइनरी एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का हिसाब आगे चल के आएगा. अभी मैं बताऊंगी ये फिफ्थ वाला कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहाँ लग रहा है. ठीक है. अब यहाँ एक चीज समझा देती हूँ. यहाँ पे आपने इसको अगर बिटवाइज में कर रहे हो और इसके साथ दो ऑपरेंड्स लिख रहे हो तो इट विल बिहेव एज बिटवाइज एंड ऑपरेटर विच इज बाइनरी वन. अगर सिर्फ एम्परसेंड साइन लगा के इसके राइट हैंड साइड पे एक ऑपरेटर लगा रहे हो तो ये यूनरी ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा. तो ये दोनों है. If you are writing in your statements, in your coding, it will work according to that. Okay, ma'am. Wherever it will find ampersand operator, okay. If ampersand operator is having one operand right hand side of it, then it will behave as address of operator. Agar it is in between of two operands, it will behave as bitwise and operator. Clear? एक एक चीज जो लिखी जाती है it is there in the library. Whenever it gets compiled, library check is done, and if syntax is complete, syntax is okay, then only you have no error in your program. Otherwise you will have that. सिर्फ इतनी चीज से नहीं चलेगा ना. आप जब पूरा प्रोग्राम लिखोगे वो किसी एक मोटिव को लेके प्रोग्राम लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दैट पूरा प्रोग्राम ऊपर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स, एंड टर्म कुछ भी आप लगा रहे हो, कोई लेबल आप दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी इनिशियलाइजिंग एवरीथिंग. तो ऑपरेटर्स भी अकॉर्डिंग टू दैट यू विल यूज. ठीक है. सो यूनरी मींस देयर इज ओनली वन ऑपरेंड. यूनरी माइनस इज देयर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर. सो यूनरी माइनस, the minus operator changes the sign of its argument. A positive number becomes negative and a negative number becomes positive. So अगर एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है int a equals to 10 and int b equals to minus a, तो b would be minus 10. I hope कुछ क्लियर करने की इतनी जरूरत नहीं है. वेरी सिंपल. Unary minus is different from subtraction operator as subtraction requires two operands. Shreya, the answer of your question. Yes, ma'am. Okay.
It totally depends on the complete expression you are writing. If there are two operands, then it will behave as bitwise AND. If there is only one operand and operand is at the right hand side of AND, it will behave as address of operator. Similarly, this minus sign, दो operands हैं तो subtraction हो जाएगा, single operand है तो unary minus means the negative one. Okay. Then we have increment operator. It is used to increment the value of the variable by 1. ठीक है, जो हमने किया भी था लूप में जब मैं आपको वर्किंग समझा रही थी लूप की. So I plus plus was there. I said it will increment its value by 1. So it is used to increment the value of the variable by 1. Sneha and Adarsh, turn on your mic, beta. Sneha. Yes ma'am. उस क्लास में आप थे जिसमें मैंने for loop कराया था? Yes ma'am. थे ना, तो उसका थोड़ा वर्किंग समझ आया है? स्नेहा ने तो शायद बाद में ज्वाइन किया था, आदर्श पहले ही आ गए थे. Yes ma'am. ओके, स्नेहा थोड़ा सा गो थ्रू करना और फाइंड आउट करके रखो आपके डाउट्स क्या है. आदर्श और स्नेहा दोनों मिलके फिर एक क्लास दूंगी जिसमें वो चीजें क्लियर कर दूं पूरा शुरू करा. तो चीजें ना बहुत ऑब्वियसली ये पूरे 1.5 महीने का काम है, जितना है 2-3 क्लासेस में नहीं हो पाएगा. तो सिर्फ डाउट्स निकालो नोट्स पढ़ के. So it is used to increment the value of the variable by 1. The increment can be done in two ways. First is prefix increment or we can say pre-increment. Second is post-fix increment, मतलब post increment. अब एक क्वेश्चन आया था जब मैंने while loop ही दी थी और उसका स्क्रीनशॉट भेजा था. तो there was a question from a student like whenever we have used for loop or another loop, we used I plus plus और उस स्क्रीनशॉट में प्लस प्लस आया था. तो what will be the result of it? तो मैंने वो समझाया था, उसका ही ये अब आपके पास आंसर आ गया इस चीज में. See, pre-increment, post-increment. In this method, the operator precedes the operand. For example, plus plus a. The value of operand will be altered before it is used. ठीक है, पहले इसमें ऐड होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होगी. पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एडिशन होगा. जब दोबारा से उस वेरिएबल को लेके आया जाएगा तब उसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करके या कह सकते हैं इंक्रीमेंट बाय 1 होके नेक्स्ट रिजल्ट में शो होगी. तो प्री फिक्स मतलब द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विल बी ऑल्टर्ड बिफोर इट इज यूज्ड. ठीक है, एंड पोस्ट में क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन पढ़ो सेकंड वाली. द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विल बी ऑल्टर्ड आफ्टर इट इज यूज्ड. नाउ सीधा ये पढ़ते हैं, ये वाला सेक्शन देखो. int a equals to 1, int b equals to plus plus a. तो कमेंट में लिखा है b की वैल्यू 2. ठीक है, दिस इज बिफोर द वैल्यू इज यूज्ड. तो अगर 1 प्लस प्लस a है, जब b की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे ना इस लाइन के बाद तो वैल्यू आएगी 2 अगर प्लस प्लस ऑपरेटर है. ठीक है, नीचे देखो int a equals to 1, int b equals to a plus plus. तो कमेंट में देखो b's वैल्यू इज 1. अगर इसके बाद इसको दिखेंगे प्लस प्लस ऑपरेटर के बाद, और अगर इधर लिखें नेक्स्ट में int c equals to a और इसकी वैल्यू प्रिंट कराए देन c की वैल्यू विल बी 2. तो दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट एंड ऊपर वाला प्री इंक्रीमेंट. डिफरेंशिएशन समझ आई दोनों की या कोई डाउट है? मैम b की वैल्यू अगर 1 बताना कैसे होगी? b की वैल्यू 1 कैसे होगी? सी int a equals to 1 1, b equals to a plus plus. इधर पढ़ो ये वाली लाइन ऊपर टेक्स्ट लाइन जो है, the value of operand of मिसिंग है यहाँ पे, will be altered after it is used. पहले ये आ जाएगा, यूज हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट बाय 1 होगा. इसी वजह से कि b की वैल्यू a++ दे दी
एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट बाय 1 हैज बीन हैपेंड हियर. ठीक है. यस मैम. Then we have decrement operator. The way we have operator, we have decrement operator. Yes. मैम ये जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है इसमें मैम c इज इक्वल्स टू a लिखा है और हमने पोस्ट मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमने b इक्वल्स टू a मतलब b की वैल्यू a प्लस प्लस है तो यहाँ पे c इक्वल्स टू a है तो c की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना 2 क्यों हो गई ये समझ में नहीं आ रहा. सी अगर तो यहाँ पे ये चीज होती, ये वाली चीज होती, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू होती 2 क्योंकि ये वैल्यू प्रोवाइड करने से पहले ही ए में 1 का इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1. प्री इंक्रीमेंट में बी में वैल्यू स्टोर करने से पहले ही ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क कर गया एंड इज वैल्यू इज 2 हो गई यहाँ पे. तो इन्होंने ये वैल्यू बी को दे दी विच इज 2. ठीक है. बट पोस्ट इंक्रीमेंट में ए प्लस प्लस है. ठीक है. पोस्ट इंक्रीमेंट में ए प्लस प्लस है तो अभी ए की वैल्यू जो है वो 1 है. 1 थी है शुरू में. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू दी है ए की वैल्यू और इसमें दिया है पोस्ट इंक्रीमेंट. तो फर्स्ट फेज जो होगा इसका, फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा इसका एग्जीक्यूट होने पे इसको वैल्यू वही देगा जो ऑलरेडी ए के पास है जो है 1. फिर इसकी वैल्यू ऑल्टर होगी आफ्टर इट इज यूज्ड वंस. लिखा हुआ है आफ्टर इट इज यूज्ड वंस. तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे बी को दे दी 1, यहाँ पर ये अभी इसके पास 1 है, ये एग्जीक्यूट हो गई. अब इसमें एक ऐड हो चुका है जो सीधा जाके मिलेगा इधर सी पे. ठीक है. पहले इसमें वैल्यू ले रहा है उसके बाद ऐड कर रहा है नेक्स्ट लाइन में. यस. ये वाली लाइन पढ़ो ना जो हाईलाइट करी है, ऑल्टर्ड आफ्टर इट इज यूज्ड. डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम तरीके से वर्क करेगा. इट इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 एंड डिक्रीमेंट कैन हैपन इन 2 वेज, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. वैसी चीजें चलेंगी जो है. मैम अगर हम उसी स्टेप के बाद बी प्रिंट कराते तो 2 नहीं आना चाहिए था. एक के बाद 2 करोगे तो आएगा, मतलब 2 बार करोगे तो आ जाएगा. ओके मैम. तो दिस इज प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. वही चीज हो रखी है. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस माइनस a तो b हो गया 0 क्योंकि पहले माइनस हुआ है वैल्यू बाय 1, उसके बाद प्रिंट हुई है ऑल्टर्ड बिफोर इट इज यूज्ड और लास्ट में इट इज ऑल्टर्ड आफ्टर इट इज यूज्ड. तो बाद में होगी, पहले इसकी वैल्यू 1 होगी और जब उसको वैल्यू दे रहे हैं सी को तो इसकी वैल्यू होगी 0. ठीक है. मैम लेकिन इसके अंदर जो हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं वो तो बी की वैल्यू में कर रहे हैं और यहाँ पे सी इक्वल्स टू a लिखा हुआ है तो ये b होना चाहिए. बी होना चाहिए ना. b होना चाहिए. यस. मैं इतनी देर से यही देख रही हूँ, आवाज आई कहीं से नहीं आई, जबकि मैं यहीं पे इस चीज को नोटिस कर रही हूँ. मैम मैंने भी वही तो कहा था लेकिन आपने कहा था कि ए की वैल्यू चली जाएगी. नहीं, मैंने उसके अकॉर्डिंगली बोला है जो आप b की वैल्यू बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली बोला है. ए का तो मैंने इग्नोर ही कर दिया. मैम अपनी गलती आप छुपा रही थी. नहीं छुपा नहीं रही थी, मैं बस इसी चीज में थी कि तुम फाइंड आउट करते हो या नहीं करते हो. नहीं तो मैं लास्ट में ऊपर जाने से पहले सीधा ये भी कर देती, तभी तो डिक्रीमेंट पे आई हूँ मैं. मेरी गलती मैं छुपा नहीं रही हूँ और मैंने गलती करी भी नहीं है. मैंने ये फाइंड आउट कर लिया था. समझ आएगा तो ही तो बोलोगे ये चीज. मैं इसके ऊपर जाती ही नहीं बेटा. आ गया मैम. इससे पहले जितनी क्लासेस हुई हैं कहीं पे अगर आया है कोई भी चीज वहां पे मैंने बोला नहीं है, चेंज किया नहीं है क्या जो मैं इसमें आगे चली जाऊंगी. यस मैम किया है. एक प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का यहाँ पे प्रोग्राम है. मैम एक चीज पूछनी है. यस. एक बार ऊपर लेके जाना स्क्रॉल कर. मैम अगर हम डिक्रीमेंट वाले उसके साथ अगर हम यूनरी माइनस का साइन भी लगाना चाहें तो लग सकता है क्या? मतलब a की वैल्यू हम माइनस में कर रहे हैं, मतलब b इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस माइनस. एक मिनट. तो क्या वो चलेगा? b की वैल्यू
नहीं नहीं, इधर ही मतलब सेकंड वाले में पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में बस बताओ, मैं यहाँ टाइप कर दूँ, बताओ क्या अगर क्या हम b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू ट्रिपल माइनस a करें ना, नहीं चलेगा, और अगर हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में करें माइनस a माइनस माइनस। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विवेक। अगर माइनस ए, ओके अजय एंड विवेक तुम दोनों का है। अजय है, एक चीज ये वाली है, यहाँ लिख रही हूँ देखो, देयर इज माइनस ए देन माइनस माइनस आई हैव, ये क्या होगा? b इक्वल्स टू, हम पोस्ट फिक्स में कह रहे हो कि आप प्रीफिक्स में? हम डिक्रीमेंट में ले रहे हैं, चलो ये कर देते हैं। अब बताओ, फिर उसके बाद श्रेया का क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्या बनेगा? मैम अगर हम उसकी तरह देखें, बी की ए की जो वैल्यू होगी मैम, उसमें पहले 1 माइनस होगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, जो मैम अपने लाइन बताइए पोस्ट फिक्स में द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। अजय तुम क्या बोलोगे? वैल्यू मैम मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अजय अगर वो यहाँ पे नहीं हो बेटा, वॉल्यूम मैम नेट नहीं चल रहा इसलिए सॉरी। अच्छा बताओ, हम समझ गए। हेलो हेलो आ रही है आवाज, बोलो। हाँ मैं हेलो हेलो बेटा, सुनाई दे रही है आवाज, नाउ स्पीक। मैम आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं कर रहा है। अच्छा तुम्हें नहीं आ रही, ओके चैट में लिख दूं? चैट में लिख के भेज दो अजय। विवेक अब कंटिन्यू करो। मैम मैं ये कह रहा था मैम, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो मैम जैसे आपने बताया a माइनस माइनस, लेकिन आपने मैम यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी है b इक्वल टू माइनस a प्लस प्लस, तो मैम इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैम पहले वैल्यू जो है वो वैल्यू लेगा a की, उसके बाद उसमें से 1 माइनस करके देन उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लस कर देगा 1। तो रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट क्या आएगा? जाएगा, इससे रिजल्ट क्या आएगा? यस चैट बॉक्स में भेज दो अजय, वी आर नॉट एबल टू लिसन। हेलो ओके मैम। विवेक आउटपुट में क्या आएगा? इफ आई एम सेइंग कि ये इसका ऑपरेशन है, ये वाला जो लिखा है, ठीक है, यस मैम, और सी में ये वैल्यू दे दी, अब सी में आउटपुट क्या आएगा? मैम सी में मैम एक सेकंड सॉल्व करके। श्रेया यू आर सेइंग समथिंग। मैं कह रही थी कि ये a को माइनस में ले लेगा ना, मतलब से a की वैल्यू अगर हमने 1 डाली तो वो -1 ले लेगा, और -1 में +1 कर के तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है ना, फिर मतलब पंख ये है ना। हेलो प्रिंट क्या करवा रहे हो, सी करवा रहे हो कि बी करवा रहे हो? क्वेश्चन यही है पूरा वाला, ठीक है, लास्ट में सी की वैल्यू क्या होगी ये है। मैम इस वाले एक्सप्रेशन की जगह यू हैव लास्ट में जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं इस चीज के लिए। होमवर्क भी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें एग्जीक्यूट करके देखना और फिर मेरे को बताना, फिर मैं तुम्हें उसका पूरा का पूरा बताऊंगी कि वे ऐसा क्यों हुआ। लगाओ दिमाग। देन वी हैव अ प्रोग्राम जिसमें प्री इंक्रीमेंट, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो C++ में प्रोग्राम है, तो इसको C में नहीं लिया हुआ है, तो सीधा ये प्रोग्राम मैं C में करा के प्रैक्टिकली कराती हूँ, आ जाएगा, टाइम बच गया तो, ठीक है। देन वी हैव नोट ऑपरेटर है। नोट ऑपरेटर मतलब कि एक्सक्लेमेटरी साइन, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। If a condition is true, then logical not operator will make it false.
तो मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है. इफ x is true then not x is false. मतलब if x की वैल्यू is 1 तो not x की वैल्यू will be 0. ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल भी नीचे लिखा था. a equals to 0 0 1 1 1 1 0 0 then not a would be 1 1 0 0 1 1. नोट ऑपरेटर क्लियर? आगे चलो. Yes, ma'am. Then address of operator. Address of operator, it gives an address of a variable. मैंने scanf समझाते हुए बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाया था कि how it is used. It gives an address of a variable. It is used to return the memory address of a variable. These addresses returned by the address of operator are known as pointers because they point to the variable in memory and gives an address on variable n. Vivek, have you gone through pointers ever? मैम यस. पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर पढ़ा है 12th क्लास में. पॉइंटर्स क्या करते हैं? मैम पॉइंटर जो है वो मैम मेमोरी एड्रेस, किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को लोकेट करता है मैम. जैसे मैम हमारे घर का एड्रेस है, एग्जांपल के तौर पे R6 149, तो मैम ये मेरा एड्रेस है. लेकिन इसकी जो वेरिएबल है, जो जो आदमी यहाँ पे रह रहा है, उसको मैम पता कैसे चलेगा कि मैम वो कहाँ पे रह रहा है? मैम एक गली के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाने के लिए उसको ये पता होना चाहिए. तो मैम इस पॉइंटर की हेल्प से जो स्टार पी है, स्टार PTR, तो मैम ये पॉइंटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है उसको कि हमारी एड्रेस वैल्यू को, जो एड्रेस ऑपरेटर है %a, वो मैम उसमें असाइन कर रहा है वैल्यू को. कितनों को क्लियर हो रहा है ये 5% भी? Anyone? बेटा यस Ma'am, yes. Yes, थोड़ा clear है. यस मैम. Clear है. ओके. बाकी नो मैम. नो मैम, मेरे को ये सुनना होता है. जब मेरे को यस यस आ जाता है ना, फिर मैं वो होमवर्क में डाल देती हूँ चीज. नो में आते हो ना जब, तो आता है कि हाँ अब समझाओ, क्योंकि बाकियों को पढ़ी ही नहीं है. ओके. सो स्कैनएफ कराया था मैंने फॉर दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज हो रही है. स्कैनएफ करवाया था. स्कैनएफ में एंड एम्परसेंड साइन था, एंड साइन था. देन आई मेड अ मेमोरी बकेट. ये मैंने यहाँ पे भी दोबारा समझाया था. ए को समझ नहीं आता सेक्शन ए को. तो सी, whenever a variable is declared, again repeat कर रही हूँ, whenever a variable is declared, it has its name and its data type. According to that data type, it creates a memory bucket and gives the name. Like a variable का नाम है, then उसमें एक memory bucket बनी. If the data type is integer and according to your system, integer takes 2 byte space for one value, तो ये मेमोरी बकेट होगी आपकी 2 बाइट की, जिसमें a equals to 5 की वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन है. तो a की मेमोरी बकेट में 5 आ गया. अब मेमोरी स्पेस में दिस बकेट इज स्टोर्ड, तो वो एक ना जगह पे है मेमोरी बकेट में. वो मेमोरी स्पेस में दिस बकेट इज प्लेस्ड एट वन प्लेस. लाइक इफ आई गिव एग्जांपल कि हमारा घर की बात करते हैं. इन आवर होम वी हैव अलमीरा वेयर हमारे सारे के सारे कपड़े रखे हुए होंगे. ठीक है, तुम सबके. सो उस अलमीरा को कहीं ना कहीं पे, इधर इन अ रूम, इधर इन हॉल और एनीवेयर वो प्लेस किया होगा. तो जस्ट सपोज योर होम इज memory space and wherever that almirah is kept, that is a memory bucket for your clothes. Clothing memory bucket is there. तो वो जहां पे प्लेस की हुई है वो memory bucket, almirah is the name, clothing is there, मतलब clothing उसकी हो गई वैल्यू, और वो जहां पे प्लेस है वो हो गया उसका एड्रेस. So suppose its address is 0101. ठीक है, हॉल में रखी हुई अलमीरा, बेडरूम में रखी हुई अलमीरा, नॉर्मल किसी रूम में रखी अलमीरा, किचन के पास कहीं रखी हुई अलमीरा. सो दैट इज द लोकेशन. लोकेशन का वो एड्रेस है. तो ये 3 चीजें समझ आई होंगी जो बच्चे न्यू है, आदर्श वगैरह, और जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर था. ठीक है, अब रीड इट आउट. इट गिव्स एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. It is used to return the memory address of a variable. What if I give you a program, write a program where you will declare a variable b equals to 11
and display its address या display the address of B. ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है विवेक, अजय, रौनक जो भी सुन रहे हैं, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के लिए? मैम एक बार रिपीट करना मैम. The question is write a program that will declare B equals to 11 as integer variable and you have to print the address of B, not the value of B. ऐसा कुछ कर सकते हो प्रोग्रामिंग में? यस मैम. यस हो सकता है. यस मैम. अब वो चीज करनी है. क्वेश्चन सबने सुना ध्यान से. ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये प्रोग्रामिंग में हो जाएगा. उसी का आंसर दिया हुआ है. मैंने b equals to 11 बोला, यहाँ पे a equals to 5 है. You have to print the address of a. तो इससे हो जाएगा अजय, these 3 lines हो जाएगा एड्रेस प्रिंट. अगर मैं ptr प्रिंट कराऊं, मैम ptr प्रिंट, अगर मैं ptr प्रिंट कर रहा हूँ हो जाएगा. आने के साथ उसमें ना कहते हैं जो फॉर्मेट. यस मैम हो जाएगा ना? यस मैम हो जाएगा. आराम से हो जाएगा. तुम्हारी आवाज कट रही है, तो तीसरी लाइन पे तुम्हें समझ आया? हाँ हो जाएगा. ओके, सो अगेन जस्ट दोबारा से यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. दीज एड्रेसेस रिटर्न्ड बाय एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आर नोन एज पॉइंटर्स because they point to the variable in memory. ठीक है श्रेया? यस मैम वो किसका एड्रेस बताएगा? वो वेरिएबल का एड्रेस बताएगा या वो 5 का, मतलब जैसे जो वैल्यू हमने असाइन करी है उसका एड्रेस बताएगा? सी, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है जिसमें मैंने 5 नाम की एक मेमोरी बकेट बनाई है. 0v0101 एड्रेस दिया है और a is the name for the variable. ठीक है, अब आ जाओ इधर. तो पॉइंटर क्या करता है? आपको उस चीज पे पॉइंट करता है. ठीक है, कि वो वेरिएबल मेमोरी में कहां पर है उस चीज को पॉइंट करता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू. तो ठीक है, देन इट गिव्स एन एड्रेस ऑन वेरिएबल n. यहाँ पे मैंने वेरिएबल a लिया है, इन्होंने यहाँ पे n लिखा है, मैंने n नहीं लिखा. इफ आई से, क्योंकि नीचे इन्होंने एग्जांपल a का लिया तो मैंने a ही लिख दिया था. सी, int a equals to 5. you know how to declare variable, integer variable. हमने a equals to 5 डिक्लेयर कर दिया. Then another variable we will declare followed by star. ठीक है, अब ये जो स्टार है, जैसे हम एम्परसेंड साइन लगाते हैं ना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का, देन ये स्टार लगता है पॉइंटर के लिए. ठीक है, पॉइंटर के लिए. अभी तक जो स्कैनएफ में एम्परसेंड साइन यूज किया था वो उससे उस एक वैल्यू को वहां से रीड करने के लिए और पिक करने के लिए यूज हो रहा था एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में लोकेशन से. अब if I want to print that location on the screen या over the screen, मुझे क्या करना है? I have pointers. तो जब भी एक पॉइंटर डिक्लेयर करोगे, हम सेकंड लास्ट एंड लास्ट टॉपिक आएगा, सेकंड लास्ट आएगा, लास्ट तो आपका फाइल हैंडलिंग है, सेकंड लास्ट टॉपिक इज पॉइंटर. तो स्टार लगाते हैं. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है एम्परसेंड साइन है, पॉइंटर जहां जहां क्रिएट करोगे उस वेरिएबल नेम के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार लगाओगे. ठीक है, तो स्टार ptr is the name for your variable which is a pointer. You have created pointer over here. Then third line देखो, ptr equals to ampersand a. a की वैल्यू है 5. Suppose I have given यहाँ पे 0101 is the address of a का वेरिएबल की वैल्यू 5, जहां पे ये मेमोरी बकेट है इसका एड्रेस है 0101. मुझे ये एड्रेस प्रिंट कराना है, मुझे a की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी. उसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट किया. पॉइंटर में एम्परसेंड a को असाइन किया है. here equal to operator is performing as assignment operator. So when you will print ptr you will get this 0101 या आपका उस मेमोरी स्पेस में जहां पे आपका a वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड स्टोर्ड, वो एक लोकेशन का एड्रेस आएगा. ये एक इमेजिनरी एड्रेस है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम. वो कहां पे जाके स्टोर हुआ है उसका एड्रेस आएगा. इफ यू विल. यस, ओके. कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है बताओ. डाउट मैम जब हम एड्रेस
ये पीटीआर यूज करते हैं तो ए तो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है और इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है जो हम पीटीआर तो से कोई भी नाम दे दो ना, स्टार ए दे दो, स्टार बी दे दो, Yes, ma'am. अकॉर्डिंग कुछ भी दे दो। तो हम ये भी हमारी मेमोरी पे जाके स्टोर होता है ना फिर। जो भी आप नाम दोगे वो एज अ पॉइंटर डिक्लेयर होगा। जरूरी नहीं है आपको पीटीआर ही देना है, कुछ भी नाम दो, आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है इसका। यस मैम, वो तो आ गया मैम। पर जब हम इसको ले रहे हैं जिसकी ए भी हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, ए की वैल्यू भी मेमोरी में स्टोर्ड है और इसकी वैल्यू का जो एड्रेस है वो उसका पॉइंटर ये है। अब ये पॉइंटर जो हम यूज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल ये भी मेमोरी में स्टोर होता है ना? ये भी मेमोरी में स्टोर होता है, बट इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो होगी, जैसे 5 इज द वैल्यू ऑफ ए, नाउ पीटीआर की वैल्यू क्या है, पीटीआर की वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ ए। ओके मैम। I'm not giving the value, but PTR's value is address of it. That's why it's printing its value is address value, not completely 5. ठीक है, तो ये एक ही वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स। एक वेरिएबल उसकी वैल्यू होल्ड कर रहा है, दूसरा वेरिएबल जो है उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है। इफ यू वांट टू वर्क विद एड्रेसेस तो आप पॉइंटर को पॉइंट कराओगे, ठीक है। Then another is size of operator. Excuse me मैम। Yes. मैम मेरे को पूछना था कि अगर हम इससे हमने पहले असाइन किया a equals to 5, अगर हम दोबारा लिखें int a equals to 10 तो वो किसकी वैल्यू बताएगा, ऊपर वाले a की या नीचे वाले a की? मैंने आइडेंटिफायर्स बताए थे, मैंने तुम्हें, जब हम नेम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, क्या था वो रूल, प्रोटोकॉल क्या था आइडेंटिफायर्स का, टोकन्स का, कि यूनिक होना चाहिए। नेम केस सेंसिटिव है, कैपिटल ए चल जाएगा। नहीं पर हमें मतलब दोनों ही स्मॉल ए है, कैपिटल में कोई नहीं है, दोनों ही सेम है। एक चीज हो सकती है, अब एक चीज और हो सकती है, int a equals to 5 आपने ये डिक्लेयर कर दिया, सेकंड लाइन में जब भी आप कर रहे हो a की वैल्यू आप int के साथ नहीं कर रहे और आपने कोई और वैल्यू दे दी, तो समवेयर इट कैन ओवरलैप विद द न्यू वैल्यू। नहीं int के साथ ही कर रहे हैं, मतलब a equals to आएगा ना? यस मैम। बेटा एरर ही आएगा बिकॉज सिमिलर नेम एरर शो करेगा उसमें, तो एरर ही शो करेगा। के टाइम पे एरर हो गया आपका। ओके मैम। Then we have size of operator. We will use it to find out the size. So this operator returns the size of its operand in bytes. The size of operator always proceeds in operands. The operand is an expression or it may be a cast. तो ये वाला प्रोग्राम हम करके देख लेंगे।